हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देयर इज एन इम्पोर्टेंट। In the 18th century, Italy was a collection of states, each having its own monarch and the tradition. You know that there is important. 18th century Italy was the collection of states, and each having to the own monarch and tradition. Some of them were is a Ventia, is Tuscany, is a papal state, and Sardinia is the Tuscany, etc. During the Middle Age, the popes is increasing their influence in both religious and political matter. There is important also. There is a pope increasing their influence in the both religious and political matters. The pope established their own political rules in what were called papal state. Soon Italy began to be grow in importance. They become a center of political life, is banking and foreign trade. During the Renaissance, the Italy's become even more important than to other states, about which you have read earlier. For many years, France and Holy Roman Empire found there is a control of Italy. The French Revolution of 1789 played an important role in the history of Italy. Their Italian rulers, essentially dangerous in their own country, drew closer to the European king, who is opposed to France. After France became a republic, a secret club forming Italian republics was formed throughout the Italy's. From 1796 till 1814, when Napoleon Bonaparte was defeated by their European power, and many Italians had started to seeing their possibility of the United Italy free from the foreign control. There is important. There is Italians has started seeing their possibility of United Italy free from a foreign control. Many revolutionaries like Mazzini and the Grivallada is also with some of secret society keep spreading their idea of an independent, unified republic among the Italians from 1849 and onward. The kingdom of Piedmont and Sardinia, and which was the monarchy, is under the victory of Emmaus. There too active role in their unification. There is important, and it was the significance that the Italian unification was headed by a monarch and under the relationship. In Caver, there are prime minister, or still there is Austrians from Lombardy, is the Sacconi and Modens, etc. And Gabadali is led to the revolt and is elaborate to the Silicalis and the Neapolis. He handed over to the charge of the two state of Emmaus and declared him to a king of Italy. Later Rome and the Venetia is joined to the Federation of Italian state, and the process of unification of Italy began with the Congress of Venice in 1815 and ended with their Franco-Prussian War in 1871. उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं 8वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था, यानी 8वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था और प्रत्येक का अपना जो है स्वयं का सम्राट और परंपरा थी। तो इटली में ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जो 18वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था और प्रत्येक का अपना स्वयं का सम्राट और परंपरा थी। उनमें से कुछ हुए थे जो बेनियता और दो मिसलाइज पापल राज्य और जो है सार्डिनिया, जो है तस्कानी आदि थे। मध्य युग के दौरान पोप को दोनों धार्मिक और राजनीतिक मामलों प्रभाव में जो है वृद्धि हो गई। कहते हैं यहाँ पर पोप का जो था दबदबा धीरे धीरे बनता गया। कहते हैं धार्मिक कार्य में भी और राजनीतिक मामलों में पोप ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लग गया। पोप का कुछ राज्यों पर राजनीतिक प्रभुता स्थापित भी किया था, यानी पोप जो था उस समय राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने में भी कामयाब हो गया।
जिन्हें पापल के राज्य कहते थे। उस राज्य का जहाँ पर पोप का राज होता था उसे पापल के राज्य के नाम से उस समय जाना जाता था। और जल्दी ही इटली ने अपने जो है महत्व में वृद्धि करना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे जो था इटली में उसने अपना महत्व को और भी वृद्धि करने लग गया और पोप के राज्य राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का केंद्र बन गया। यानी अब पोप जो था सिर्फ घरेलू मामलों को नहीं देखता था, अब राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का भी उसने केंद्र बना दिया। पुण्य जागरण के दौरान इटली का महत्व अन्य राज्यों से, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, बढ़ गई और कई सालों तक फ्रांस और पवित्र रोमन साम्राज्य में ने इटली के लिए युद्ध लड़े। तो कहते हैं उस समय पोप का बहुत ही दबदबा बन गया, जिसके कारण जो है इटली का एकीकरण करना बहुत जरूरी हो गया। और कहते हैं 1789 की फ्रांस क्रांति ने इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के राजाओं ने खतरों को जो है भांप कर यूरोपीय देशों में रिश्ते बनाने जो फ्रांस के विरोधी थे। यानी देखा जाए पोप के जिस प्रकार दबदबा बढ़ता ही जा रहा था, तो इटली के राजाओं ने इस खतरे को भांप लिया और यूरोप देशों से रिश्ते बनाए जो फ्रांस का विरोधी थे। बाद फ्रांस एक स्वतंत्र बन गया और गुप्त क्लब का जो है पूरे इटली में गठन किया गया। यानी कई क्षेत्रों में जो है गुप्त क्लब का यानी सीक्रेट जो है क्लब बनाई गई जो पोप के खिलाफ था। और देखा जाए 1796 से लेके 1814 तक नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्ति से हार गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्ति से हार गया तो कई जो है इतालवियों ने एक ऐसी संयुक्त इटली की संभावना देखी जो विदेशी नियंत्रण से बिल्कुल ही मुक्त थी। कहते हैं मजानी और जो है गैरीबल्दी ने गुप्त समाज के साथ कई क्रांतिकारी इतालवियों में ने एक स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य के विचार को प्रसार को जारी रखा। यानी देखा जाए तो मजनी और जो गैरीबल्दी ने गुप्त समाजों के साथ साथ कई क्रांतिकारी इतालियों के स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य के विचार को प्रसार में अपना जो है योगदान देता रहा, यानी इसको प्रसार करता रहा। और 1849 के बाद से पाइडमोंड और सर्डियोनियस, जिसका राजा विकल्टर और एमोनोलेस था, ने एकीकरण में एक सक्रिय भूमिका भी अदा की। अब देखिए इटली का एकीकरण में जो कि 1849 में हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और ये किनके कारण हुआ, जो है पाइडमोंट और सर्डियोनिया और जिसका राज्य विकट और एमोन्यूलेस ने जो है एकीकरण में एक सक्रिय भूमिका अदा की। और उसके नेतृत्व में कैबोर जो प्रधानमंत्री था उस समय ने आदित्य और सेलम्बोडिस, तुर्केनिस, मेडोना आदि से मुक्त भी करवा लिया। गैरीबाल्डी ने विद्रोह का नेतृत्व जो है सिसिलिया और नेपल्स में किया। उसने दो राज्यों का प्रभार एमोन्यूलेस को सौंप दिया और उसे जो है इटली का राजा भी बना दिया। बाद में रोम, वेनेतिया और इतालवी जो है राज्य के संघ में शामिल हो गए और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है 1815 में वियना की कांग्रेस के साथ शुरू हो गई और फ्रांसिस जो है पेरिसिया युद्ध के साथ 1871 में समाप्त हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।